Hello? Hello? Hello. Hello. Hello? Yes. Uh, Who's this? Hi, I'm Sanket. I'm with Makeshift currently, so you may start the session. I may start the session. I am just waiting to see how many participants are there. There are three people on the call. Give me 1 minute. Okay. Join. Okay. I can. Hmm. Um, Hello? Hello? Can you hear me now? Still breathing? Okay. Um, I have kept the mic very close. Okay. Yeah, Liz, can you try that? This seems fine. I can hear you now. You can hear me now? Okay. All right. Um, I need some help with regards to sharing the PPT. It shows that I am sharing the PPT. However, when I flash it, are you able to see the PPT?
We can see your PPT. Can you go to the second slide? Okay, all right. Yes. I did. Yes. Yes. You can, yes, right? Yes. Yes. Okay. I can't see myself showing PPT, so that was the problem. Okay, all right. And I think currently there are 2 people on the call. Do we want to wait for everyone and then start? And We can start. We can start. Let's start on schedule. okay, because once I start, then it'll be like, how many are we expecting to join? Somewhere around 20-25 people should be joining us. Okay. How many have joined so far? There are 5 of us. Okay. All right. Can we? Okay, I think it's okay. Fair enough. So what we could do is we could start with some. And is this going to be an interactive thing where people are able to speak back, able to chat? Sorry, I did not get you. Will everybody be able to speak back in terms of if let's say if I want to ask them who they are and introduce and stuff like that, will that be possible just the way you are speaking, or they will only be able to chat and not be able to speak? They'll be able to chat with you. That would be a better option. Okay. All right. Okay. All right. Fair enough. So I'll have to keep the and once I open the chat box, are you still able to see my PPT? That's the last question I have. You can simultaneously do it. Yeah, we can see your PPT. You can see our PPT. Okay, great. All right. Hi, everyone. This is a little strange kind of what you say session or workshop webinar where you don't get to see the people and also not get to talk to them. Largely it's one way, but there will be some kind of element of chat, I hope. So welcome to everybody who has joined here. And to begin our session in some time, in 5 minutes, largely I'll just give a background of what we will try and cover, and hopefully we will try and also get to share what are our expectations from this webinar, right? So largely we are looking into principles of teacher education in this particular time span. I will try and cover up certain things in the first 30 minutes and then leave it up for some questions in the end. The larger perspective of this particular time slot, the way I have framed it, is that I will provide you with certain literature and certain ideas that are floating around. However, after those ideas that I have shared, you may have to dig deep into each of them to be able to contextualize it in your problem statement and in your own search for improving teacher education or whatever area you have chosen. So I am not going to kind of have answers to everything, but largely some direction setting is what I will try and cover in this 40 minutes. Yeah. Yeah. Perfect. Thank you for sharing that image. So to begin with, participants who have joined so far, could you share in one statement, what is one area that you want to change in education, and one area that you are expecting from this particular session that you would get to know about or get to learn? Yeah, I'll repeat myself. What is one area that you want to change in education, and what is one expectation that you have from this particular session? Yeah. Please type it on the chat so I get to know. Thank you. Okay, thank you. Okay. Teacher education is too theoretical right now. Yeah.
biology education is the focus. Okay. Yeah, okay. So far we've got 2 reply and 2 of them are typing, so we'll wait. Training the teachers is the focus area. If you could write what is your focus and then what is the expectation from the session. So then I know which one of these are your focus and which one is the expectation from the session. Yeah. Okay. Curriculum for teacher training. Okay. Curriculum for teacher training. All right. Abhijit, education counseling for whom? You said platform for education counseling. This education counseling is targeted towards who? Parents, students, teachers? All right, while we are typing, okay. Just a couple of minutes and then we'll quickly jump into the session. Okay, all right, okay, got it. All right, and Shilpa is typing, so we'll just wait for Shilpa. Focus to bridge the gap, what teachers know and what can be more restructured. Okay, all right, this is helpful. So you want to, if I could just paraphrase and try and summarize that the 4 to 5 people who have shared so far, is one, we are into a little bit of curriculum. We want to see how can teacher training be done more than theory and can be more experiential, more internship based. We want to understand how for a particular subject teacher training can be done and what that curriculum could look like. Example, biology. One of us just wants to explore the whole teacher training and teacher education wala area to see what's going on, what are people talking there, and so on and so forth. Fair enough. And then one person just wants to know what can be done, what can we do better in teacher education. There is a curriculum for B.Ed, correct? Yeah. Yes, Raja. And do we have a kind of understanding of whether that B.Ed helps or not? And we'll try and cover up in during the session what the national. So largely, this session will help you see what national curriculum framework for teacher education is saying. So I'm going to share some of the excerpts from that particular document. And so you will get to know what is the aim and larger vision of teacher education in India based on the national curriculum framework. So that's the anchor and base that I'm using for this session. And then of course we could talk about other questions. So to begin with, if everybody can think about, I'm going to put up 3 statements. What you have to do, आपको क्या करना है, आपको इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगता है. जब आप 3 स्टेटमेंट पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद आपको मुझे लगता है कि मैं सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो मुझे बहुत ठीक लग रहा है, या मुझे पहला वाला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, समथिंग ऑन दोज लाइंस. तो आप जो स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो, आपको वो स्टेटमेंट चुनना है और चैट में लिखना है 1, 2 या 3. ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे रखता हूं.
रीड करें हम. ओके, so the statement says, first one, teachers are agents to bring the vision of NCF into practice and to safeguard that vision in their respective schools. ये पहला statement है. NCF is National Curriculum Framework, इंडिया का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. दूसरा स्टेटमेंट है, टीचर्स आर इम्प्लीमेंटर्स, और वो इम्प्लीमेंटर्स जो है उनको प्रिस्क्राइब करिकुलम टेक्स्ट बुक दी जाती है, और टीचर्स वो करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो होती है, जो स्टेट बोर्ड देते हैं या सीबीएसई है या जो भी बोर्ड वो सिखा रहे हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट करना होता है. दे आर नॉट देयर टू अंडरस्टैंड द विजन ऑफ एनसीएफ. वो टेक्स्ट बुक पे कहीं ना कहीं छुपा होता है, और अगर वो टीचर टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लेना तो विजन हासिल हो जाएगा. ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है. और तीसरा स्टेटमेंट होता है कि सारे सिस्टम में जितनी भी गलतियां हैं, बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, वैल्यूज नहीं है बच्चों में, आजकल बहुत सारी चीजें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बच्चा अगर सुसाइड भी कर लेता है तब भी सारा इल्जाम जो है वो टीचर पे आ जाता है कि टीचर ने पढ़ाई अच्छी नहीं की, हमने बच्चों को अच्छे से एजुकेट नहीं किया, हमने बच्चों को सिखाया नहीं. हमारे टीचर्स जो है ना, वो सिस्टम, सारे सिस्टम का फेलियर का जो दारोमदार है या सारा जिम्मेदारी है वो टीचर पे आ जाता है. तो कई बार टीचर्स को स्केपगोट बनाया जाता है पूरी सोसाइटी के फेलियर्स को लेके. कुछ भी गलत हो रहा है तो आजकल हमारा एजुकेशन देखिए. सो विच ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स डू यू रिलेट विथ मोस्ट? एंड पीपल हैव स्टार्टेड शेयरिंग. करेक्ट, या यू आर राइट लिज. आइडियली हमें 1 होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी टीचर्स को टेक्स्ट बुक दिया जाता है और वो टेक्स्ट बुक को वो लोग फॉलो करते हैं. should be 1 but it is 2. Yeah, Manwa, you're right. Manawa, sorry. Right, so now we all are kind of in link के होना चाहिए था 1, लेकिन रियलिटी में 2 है, और कई बार रियलिटी में तीसरा भी आ जाता है. अब मैं आप सबके सामने कुछ एरियाज रखूंगा. आपको ये बताना है अगली स्लाइड में कि लर्निंग पे अगर हम चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन हो, सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, तो सबसे ज्यादा लर्निंग का जो इन्फ्लुएंस है वो किसका है? बच्चों का है. और मैं ऐसे करके कुछ 5-6 स्टेक होल्डर्स के नाम बताऊंगा. आपको बताना है कि इनमें से कौन से वालों का कितना प्रतिशत योगदान है बच्चों के लर्निंग के लिए. सो मैं अगली स्लाइड रखता हूं. सो आपको क्या लगता है बच्चे की जो लर्निंग है, अगर हम 100% में से इनमें डिवाइड करें तो 30% स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करती है, 50% उनके घर के ऊपर निर्भर करती है, 30% उनके दोस्तों पे निर्भर करती है, 20% स्कूल पे, प्रिंसिपल पे 10, टीचर पे 10 या व्हाटएवर. तो अगर 100% को इन सब में डिवाइड करें तो आपको क्या लगता है कौन सी स्टेक होल्डर्स के हाथ में कितना परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस आएगा? या सबसे ज्यादा किसका है, और वो प्रतिशत आपको क्या लगता है कितना हो सकता है? 30, 40, 50 गैस कीजिए. और अगर आप में से कोई गैस करना चाहता है कि टीचर्स का प्रतिशत कितना है तो वो भी आप कर सकते हैं. ओके, मनावा ने लिखा है टीचर सबसे पहले, फिर पेरेंट्स, फिर पियर्स. ओके, होम यानी घर और घर का वातावरण, पियर यानी फ्रेंड्स, दोस्त, आसपास का माहौल, आसपास के दोस्त. अच्छा, होम और पेरेंट्स से फर्क क्या है? तो पेरेंट्स की शिक्षा वगैरह, और होम मतलब उसका एनवायरनमेंट.
घर का वातावरण वगैरह वगैरह। सो टीचर्स अलग होते हैं, टीचर्स का कितना योगदान है, प्रिंसिपल का कितना है, लेकिन स्कूल एज अ कल्चर, स्कूल का पूरा योगदान कितना होता है कि स्कूल का जो कल्चर होता है, स्कूल कौन सी स्कूल में बच्चा जा रहा है उसका कितना, मतलब अगर कोई बच्चा कहे कि अच्छी स्कूल में जाएंगे ना तो 50% तो वहीं पे आपका काम हो जाता है, वैसा भी। और ये मैं एक बेसिक एक थोड़े से एक रिसर्च से शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ आखिर में मैं टीम के साथ पूरा फोल्डर शेयर करूंगा जिसमें थोड़े से रीडिंग मटेरियल है, तो आप उसको देख सकते हैं। जो एक तरह का रिसर्च है, ये दुनिया का फाइनल रिसर्च नहीं है, या सारे लोग इसे मानते हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक इंडिकेशन हमें मिलता है कि अगर किसी ने रिसर्च किया है तो उसे क्या पता चला है उस रिसर्च के द्वारा उस कॉन्टेक्स्ट में। राइट, ये ओके। सो टीचर जो है वो 30% अकाउंट करते हैं, 30% टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे कैसे लर्न करेंगे। And I see some of them are typing and some of them are writing different percentages. So those of you who have got a chance, is 30% of influence comes from teachers. Clearly टीचर्स का काफी योगदान होता है टीचिंग लर्निंग पे, और उसका रिलेशन हम इसीलिए देख रहे हैं कि टीचर एजुकेशन के फिर प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पे इस चार्ट में देखें, पाई चार्ट में, तो हमें दिखेगा कि ज्यादा करके बच्चों पे निर्भर करता है 50%। और उसका क्या मतलब होता है वो हम आज के कॉल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन बच्चों की खुद के ऊपर की भरोसा, खुद का कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह, उसके ऊपर लर्निंग डिपेंड करती है। और टीचर्स उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल है लर्निंग के लिए, और प्रिंसिपल, स्कूल, पीयर, होम, ये सब कम है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में जाके किसी प्रिंसिपल को पूछोगे या टीचर को हम पूछेंगे कि बच्चे लोग क्यों नहीं पढ़ते, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट पे चले जाइए प्लीज। हाँ, अभी बेटर है। कोई म्यूट अनम्यूट पे है क्या? सारे लोग म्यूट पे जा सकते हैं प्लीज। ओके, सो सबसे ज्यादा बच्चों पे फोकस है, उसके बाद टीचर्स है। और मैं ये कह रहा था कि ज्यादा करके जब हम प्रिंसिपल्स या टीचर्स को किसी को पूछते हैं कि बच्चे क्यों नहीं लर्न कर रहे, तो जवाब आता है कि वो इसके लिए नहीं करते क्योंकि वो जो बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, या उनके आसपास के दोस्तों में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो क्लियरली ये रिसर्च थोड़ा सा ये दिखाता है कि वाइल बैकग्राउंड पे और उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन टीचर काफी फर्क कर सकते हैं। और अगर ये हकीकत है कि टीचर का बच्चों पे काफी इन्फ्लुएंस है, तो हमारा अगला जो सेक्शन है वो यही हम सोच रहे हैं कि वो करने के लिए टीचर एजुकेशन हम कैसे करेंगे। या थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई अनम्यूट पे है, अगर वो म्यूट पे कर दे। कोई नहीं, नहीं
Okay, everybody is all right. So अगला एक मिनट हाँ. ओके, आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है क्या? ओके, ऑल राइट, ठीक है. सो मुझे ही डिस्टर्बेंस है यहाँ पे. ऑल राइट, ओके. तो अभी अगला सेक्शन जो हम क्या करेंगे, अगले सेक्शन में हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को देखेंगे. हम और एक डॉक्यूमेंट को देखेंगे कैम्ब्रिज का, कि कैम्ब्रिज में टीचर एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या बताया गया है. और एक जॉन हेटी का थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे. और ये जो मैंने रिसर्च अभी शेयर किया था वो जॉन हेटी का रिसर्च किया हुआ है, उसका आर्टिकल जो है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा. तो इन 3 चीजों को हम देखेंगे. शुरू करते हैं पहले ये वाले चीज से. और ये डॉक्यूमेंट जो है इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, एंडिंग में बताऊंगा. ये डॉक्यूमेंट कहता है कि टीचर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता क्लासरूम में एक्टिविटीज पूरा करने के लिए, उनको सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता. और ये जितने भी फिलोसॉफिकल एजुकेशन वगैरह जो हम कह रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हैं, फिलोसॉफिकल चीजें हैं जो उनके हिस्से में नहीं आती है. सो लार्जली दैट्स द चैलेंज दैट टीचर्स फेस. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो सिचुएशन करंटली है वो ये है कि टीचर और बच्चे दोनों सिलेबस कंप्लीट करने में और वो सारी चीजों में रह जाते हैं. पढ़ाई के जो मजा लेना होता है, जो जॉय होता है, उसमें वो नहीं कर पाते. मेरा आपसे एक सवाल है, ये डॉक्यूमेंट इंडिया में ही बनाया हुआ था. आपको क्या लगता है ये कौन से साल का डॉक्यूमेंट है? चैट में अगर आप लोग लिख पाए. कि टीचर्स की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स के बारे में हमने किसी ने लिखा है, ये कौन से साल में लिखा होगा? 2010. ओके, कोई और? एक ही जवाब आया है 2010 का, कि ये जो लिखा हुआ है वो 2010 का है. किसी और को ट्राई करना है? कभी लिखा होगा ये पैराग्राफ? ओके, somebody has written परमानेंट कंप्लेंट है. पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है. ऑल राइट, करेक्ट, करेक्ट, ओके, श्योर. सो हमें समझना ये है, और इस स्लाइड से हमें जो समझना ये था कि टीचर एजुकेशन का जो प्रॉब्लम रहा है ये काफी टाइम से रहा है. ये आज या कल का प्रॉब्लम नहीं है. और मैं इसका डेट आपको बाद में बताऊंगा. ये डॉक्यूमेंट के डिटेल में मैं नहीं जाता.
लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2010 का। वो कहता है टीचर की जो क्वालिटी है वो अलग अलग चीजों पे निर्भर करती है। टीचर का स्टेटस समाज में क्या है, क्या लोग टीचर को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको अच्छा दर्जा देते हैं, उनका रेम्यूनरेशन कितना पैसा टीचर को मिलता है, कंडीशंस ऑफ वर्क, उनके काम कंडीशंस कैसे हैं, उनका एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन, कितना उनको अच्छा एजुकेशन मिला है, और प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन को कितना एजुकेशन मिला है। डॉक्टर करने के लिए हमें 4 साल लगते हैं, एजुकेशन करने के लिए 1 साल वाला भी चल जाता था पहले, अभी 2 साल हुआ है। रेम्यूनरेशन का आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा अभी निकल जाता है, क्योंकि कई लोगों को 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन मिलता है, लेकिन उसके बावजूद पैसे मिलने ज्यादा देने से टीचर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए या टीचर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, ये कनेक्टेड नहीं दिखती है। The ability to teach is comes from the professional education. So professional का मतलब जब टीचर एक प्रोफेशनल कोर्स करता है, जैसे कि बीएड का कोर्स हुआ उनका प्रोफेशनल एजुकेशन का, तो उसमें उन्हें कितना सीखने मिला, वो उनकी एबिलिटी टू टीच को डिफाइन करता है। सो प्रोफेशनल एजुकेशन इज एबिलिटी टू टीच। टीचर से, और ये पेज पे मैं ज्यादा आपको नहीं जाना चाहता हूं, कॉलेज प्रोफेसर्स को बीएड नहीं मिलता, स्कूल्स में मिलता है, राइट। मैं आपको ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड के द्वारा सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि टीचर की ये सारी जिम्मेदारियां हैं कि जब वो सिखाए, और राइट टू एजुकेशन के एक्ट में एक छोटा सा सेक्शन है, उसमें ये कहा गया है कि टीचर ये सारी चीजें करे, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, बच्चों के नॉलेज का बेहतर विकास करे, फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को और आगे बढ़ाए, वगैरह वगैरह। मैं इसमें आपके सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप पता करें कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट में आपको ये एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। आई वांट टू कवर अप द अदर पार्ट्स। इन एडिशन, टीचर का एक मुख्य रोल जो है, हाँ, वेग और इमेजरेबल है, और मैं आपको आगे कोर्स में मेजरेबल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि कोई कोर्स में मेजरेबल एस्पेक्ट्स कहाँ है और कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ये है कि टीचर इन दिस प्रोसेस इज अ को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। ये एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है टीचर एजुकेशन का और बच्चों को सिखाने का भी। यूजुअली टीचर को ये लगता है कि मुझे सब आता है, बच्चों को नहीं आता है, तो मैं बच्चों को ज्ञान देना चाहता हूँ, और जब मैं वो ज्ञान दूंगा बच्चों को याद रखना है, और बच्चे जितना ज्यादा याद रखेंगे उतना ज्यादा वो पढ़ाई किए होंगे। इस चीज को हमें हटा के टीचर बच्चों का नॉलेज क्रिएट करने में मदद करने वाला है, ये टीचर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। क्या हमारे सारे टीचर्स एट द एंड ऑफ बीएड कंस्ट्रक्टिविज्म करके एक कॉन्सेप्ट है, क्या उस कॉन्सेप्ट को सारे टीचर समझ पाते हैं? ये हमारा एक मेजर है। उसके मेजर को कैसे ब्रेक डाउन करना वो अलग पूरा एरिया है, लेकिन वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टीचर एजुकेशन शुड बी, क्या हमारे टीचर्स को कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करे बच्चा, कैसे वो खुद सीखे, कैसे वो अपने आसपास के अनुभवों से सीखे, ना कि टीचर उसे सही जवाब दे दे। इन दोनों में जो फर्क होता है, क्या हमारे सारे टीचर्स को टीचर एजुकेशन करने के बाद पता चलता है कि ये मेरा रोल है, ना कि बच्चों को याद दिलाना। तो ये एक पहला प्रिंसिपल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगेन डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर दिया हुआ है, जब आप रिसर्च करने जाए तब आपको ज्यादा पता चलेगा। करेक्ट। फॉर स्कूल्स बहुत सारी चीजें बीएड में कवर नहीं होती है, जो होती है वो भी टीचर्स याद भी नहीं रख पाते। तो अगर बीएड में कवर करने के बाद भी अगर हम टीचर्स को पूछे कि बिहेवियरल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, इन सारे क्रिटिकल एस्पेक्ट है, इनमें से कौन सी स्कूल ऑफ थॉट में आप बिलोंग करते हो, तो टीचर को शायद याद भी नहीं होगा कि बिहेवियरिज्म करके कुछ था।
या कॉग्निटिविज्म करके कुछ था, या कंस्ट्रक्टिविज्म करके कुछ था, या वगैरह वगैरह। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टीचर एजुकेशन इज के टीचर्स को कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में और फिर दूसरे जो साइकोलॉजी के थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगेन मैं आखिर में थोड़ा बताऊंगा कि वो क्यों नहीं होता है। जनरली अगेन मैं यहाँ पे, या वो थियोरेटिकल है, वो कोर्स में कवर नहीं होता है। हाँ, ये आप लोग रीड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग इसे रीड करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप ये डॉक्यूमेंट को बाद में जाके रीड करें, और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें करंटली टीचर्स के जो प्रॉब्लम्स है या टीचर एजुकेशन के जो प्रॉब्लम है वो लिखे गए हैं। तो अगर आपको जानना है कि करंटली टीचर एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको वो मिल जाएगा। सो मेरा आज का रोल ज्यादा करके आपको लिटरेचर से वाकिफ कराना है, ना कि आंसर्स देना। वो मैं नहीं कर पाऊंगा 1 घंटे के कॉल में। इसमें से एक चीज जो ज्यादा करके टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में नहीं होती है वो है इंटर्नशिप। जो हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि टीचर्स का इंटर्नशिप बहुत ही लिमिटेड होता है, या वो पास करने के लिए ही होता है, ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता और वो एक्सपीरियंस करते करते नहीं सीख पाते टीचर्स। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, वो ये है कई बार टीचर्स को लगता है कि बच्चों का जो दिमाग है वो अलग अलग बॉक्सेस है और मुझे उस बॉक्सेस में कुछ ना कुछ भरना है। यहाँ पे ज्योग्राफी डाल दूंगा, वहां मैथ्स डाल दूंगा, यहाँ साइंस डाल दूंगा। तो अगर टीचर की समझ बच्चों के ब्रेन के बारे में ऐसी है तो ऑटोमेटिकली टीचर्स जो सिखाएंगे वो ज्यादा करके मेमोरी बेस्ड होगा। और टीचर एजुकेशन के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें जोर देना चाहिए कि कैसे टीचर बच्चों के दिमाग को इस तरह से ना समझे कि ये जगह एक भरने की जगह है, यहाँ पे हम पुस्तक डाल देंगे, यहाँ पे ये डाल देंगे। तो आई थिंक मैं इस डायग्राम से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि टीचर एजुकेशन में हम इन चीजों पे बात करें। हम टीचर्स को पूछे आपका बच्चों को समझने सीखने का जो समझ है क्या वो ये तो नहीं है। तो टीचर एजुकेशन में इसके ऊपर बात होना, दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। ये जो मैंने ऊपर का फोटो बताया था वो इस किताब से आता है, व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे। ये टीचर्स के लिए किताब है जो एक इंडियन ऑथर ने लिखी है, कमला मुकुंदा ने, और उन्होंने सारी चीजें इसमें ज्यादा करके साइकोलॉजी के तरफ से लिखी है कि बच्चों कैसे सीखते हैं, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, उनको लर्निंग कैसे होती है। और बहुत सारे जो सवाल हम कहते हैं कई बार बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बच्चों को अपने आप पे छोड़ दो खुद ही सीख जाएंगे, बच्चों को बार बार चीजें कराओ वो सीख जाएंगे। तो इन थोड़े से सवालों के जवाब इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से, न्यूआंस तरीके से बताए गए हैं। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो वो ये किताब अमेजोन पे मिलती है, आप खरीद सकते हो। लेकिन ये टीचर एजुकेशन के लिए और टीचर के लिए भी ये किताब काफी हेल्पफुल है। तो ऊपर मैं बताना चाह रहा था कि उस करिकुलम डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि करंटली टीचर एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है। आगे जाके पेज नंबर 20 में उन्होंने ये भी बताया है कि टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए इंडिया में। और उसमें मैं चाहता हूं कि आप जो सेकंड वाला पॉइंट है, टीचर्स नीड टू व्यू लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग एंड नॉट मियर रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, इसके ऊपर आप फोकस करें। सॉरी, स्लाइड चेंज हो गई, 1 मिनट। सॉरी, ये बार बार चेंज हो रहा है। या सो अगेन ये वाले डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स है और अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा जब हम टीचर एजुकेशन का कोर्स बनाएंगे तब। और वो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, करीबन 12-15 पॉइंट्स हैं। मैंने सारे पॉइंट्स कॉपी नहीं किए यहाँ पे, लेकिन जब आपको रेफर करना है तो आप कर सकते हो। उसमें से मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये है
कि टीचर्स को लर्नर्स जो है वो सीखने में अपना योगदान कहाँ देखते हैं, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। बच्चों के लर्निंग में सिर्फ टीचर का योगदान नहीं होता है, बच्चों का खुद का जो योगदान है। इसके ऊपर का जो ग्राफ हमने देखा उसमें 50% ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टूडेंट पे होती है, लेकिन क्या ये हमें टीचर के क्लास में दिखता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे है या ज्यादा करके टीचर ही बोल रहा है? तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो वो ग्राफ भी बताता है, और ये हमारा करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है वो भी हमें बताता है। और ये दूसरे पॉइंट्स है जो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको करिकुलम फ्रेमवर्क ने 3 की एरियाज बताए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर एजुकेशन के, और उस 3 की एरियाज के अंदर फर्दर एरियाज बताए हैं कि टीचर्स को क्या आना चाहिए। तो पहला एक है करिकुलम एंड पेडागोजी आना चाहिए, उसके अंदर करिकुलम स्टडीज, और करिकुलम स्टडीज का मतलब करिकुलम को कोई कैसे पढ़ता है, करिकुलम का क्या योगदान है। टेक्स्ट बुक इज नॉट करिकुलम, कैसे टेक्स्ट बुक और करिकुलम के बियॉन्ड मैं एज अ टीचर जा सकता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा कि टीचर की जिम्मेदारियां सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है, उनको खुद करिकुलम डेवलपर बनना पड़ेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। तो अगर हमारे टीचर्स करिकुलम के ऊपर अगर कोई टिप्पणी नहीं दे पाते, अगर वो ये नहीं कह पाते कि टेक्स्ट बुक में क्या सही है क्या गलत है, या ये टेक्स्ट बुक के अलावा मैं कैसे और चीज़ों को क्लासरूम में ला सकूं, अगर वो नहीं कर पाए, इसका मतलब हमारा टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं चल रहा। क्योंकि एक हिस्सा प्रिंसिपल ऑफ टीचर एजुकेशन इज सारे टीचर्स इक्विप हो जाए, सक्षम बने कि वो करिकुलम पे एक राय बना पाए और करिकुलम को टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड वाला पार्ट देख पाए। अगर वो नहीं देख पाते तो फिर इट्स अ फेलियर ऑफ टीचर एजुकेशन। सो दैट्स द सेकंड प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल था कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरा प्रिंसिपल टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। फिर पेडागोजी को समझना, जिसमें अलग अलग तरीका है, एक्टिव लर्निंग और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो समझना। असेसमेंट को समझना, हम में से किसी एक ने कहा था, लेकिन अगेन असेसमेंट की भी अपनी अलग अलग थियरीज है, तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है वगैरह वगैरह। बच्चों को समझना, लर्नर को समझना, कंटेम्प्रेरी स्टडीज एंड एजुकेशनल स्टडीज, एंड उसका डिटेल्ड हिस्सा में नहीं जा पाऊंगा, वो उस डॉक्यूमेंट में है। अगर आपको डीप में जाना है तो आप इसको रेफर कर सकते हो। मेरा आज का हेतु है मैं आपको उस दिशा में पॉइंट करूं कि कहाँ से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन मिल पाएंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट है और उसका ये 3 लेड आउट किया हुआ फ्रेमवर्क है। ये हमारा नेशनल करिकुलम है। अभी मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। कैम्ब्रिज जो होता है, आईजी, कैम्ब्रिज के प्रोफेशनल टीचर डेवलपमेंट के इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। वो लोग ने टीचर एजुकेशन को किस तरह से देखा है। सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू सम थियरीज जो बहुत ब्रॉड थी, और उसका एग्जाम्पल रिसर्च ये कहता है कि टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्कूल की एवरीडे लाइफ के दौरान होना चाहिए, ताकि टीचर एक इंटर्नशिप के दौरान उसे सीख सके। ना कि मैं थियरी की क्लास करके आया हूं, अब जाके मैं क्लास में बैठूंगा तो मुझे अभी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे 2 साल पहले जो सिखाया था वो उसमें मुझे कैसे दिख रहा है। अगर वो स्कूल के दौरान हो, इसके लिए प्री सर्विस इन सर्विस का नोशन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। बट लार्जली उसका हेतु ये है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, कि स्कूल में काम करते करते मैं अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा प्रिंसिपल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो ये है कि एक बार मैंने बीएड कर दिया तो मेरा लर्निंग खत्म नहीं होता, मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो तब शुरू होता है, और प्रोफेशनल एजुकेशन एक्चुअली तब शुरू होता है जब मैं स्कूल में जाके मेरे एजुकेशन को प्रैक्टिस करते वक्त देख पाऊं कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं कर पा रहा हूं। तो ये एक तीसरा प्रिंसिपल है मेरे हिसाब से। इसी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टीचर का जो प्रायर नॉलेज होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। मुझे लगता है हानिकारक मैं इसके लिए कहता हूं क्योंकि अक्सर टीचर
को लगता है कि उसके जो टीचर ने जिस तरह से सिखाया है ना, उसमें से जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, या कोई अच्छा बच्चा मार के सीख गया, या कोई अच्छा बच्चा बार बार करते हुए सीख गया, तो टीचर का वो प्रायर नॉलेज बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है टीचर की अपनी फिलॉसफी बनाने में कि बच्चे कैसे सीखते हैं। आइडियली उन्हें कमला मुकुंदा की बुक पढ़नी चाहिए और फिर पता करना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, लेकिन वो ना वो होता नहीं है, और उसके बजाय टीचर अपने एक्सपीरियंसेस पे फिलॉसफीज बनाते हैं। और इसके लिए टीचर का जो प्रायर नॉलेज है, टीचर एजुकेशन के अंदर हमें उस प्रायर नॉलेज को बार बार सरफेस पे लाके डिस्कस करके, अगर वो गलत है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और टीचर को मदद करनी पड़ेगी कि कैसे वो उस प्रायर नॉलेज को, अगर वो गलत है तो उसको रिजेक्ट करे। अगर हम वो नहीं करते तो फिर टीचर हमारे सीखने के बावजूद 2 साल का ये कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद, या 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद फिर से अपने पुराने हैबिट्स और अपनी पुरानी फिलॉसफी और अपने पुराने माइंडसेट पे वो चला जाता है। उसका जो आंसर है वो ये है कि हम उनके प्रायर नॉलेज को टीचर एजुकेशन के कोर्स में बार बार टेबल पर लाए, बार बार उस पर डिस्कस करें, और फिर उनको मौका दे कि वो अपने प्रायर नॉलेज को धीरे 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 एडजस्ट करें। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं बहुत ही जल्दी आगे जाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल चेंज का नाम दिया हुआ है। सो कॉन्सेप्चुअल चेंज का मतलब, अगर टीचर का कोई एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे ऐसे सीखते हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट गलत है, अगर वो कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट है, या वो कॉन्सेप्ट है कि बच्चे सारे गरीब परिवार से आते हैं तो नहीं सीख पाएंगे, या सारे बच्चों की बुद्धि जो होती है वो पहले से डिसाइडेड है, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट टीचर्स पहले से लेके आते हैं तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर वो हम चेंज नहीं करेंगे तो टीचर कोर्स तो कंप्लीट कर देते हैं, सब असाइनमेंट्स भी सबमिट कर देंगे, लेकिन उनकी जो अपनी बिलीफ्स है वो अभी भी चेंज नहीं हुई। तो टीचर एजुकेशन का एक और प्रिंसिपल है कि हम उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर चेंज लाएं जब भी वो कॉन्सेप्ट्स गलत हो। उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और अभी भी थोड़ा सा एक एक्टिविटी है आप सबके लिए। अगर हम सब एक गाड़ी में जाते हैं और वो गाड़ी एक सर्कल के थ्रू जाती है, ठीक है, तो दरवाजे के, गाड़ी के राइट साइड के दरवाजे पे जो इंसान बैठा है और गाड़ी के लेफ्ट साइड पे जो दरवाजे के पास इंसान बैठा है, क्या दोनों की जो रफ्तार है वो सेम होगी क्या? मैं फिर से दोहराता हूं, एक गाड़ी है जो सर्कल में गोल गोल घूम रही है, और जब वो गोल घूमती है तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए राइट साइड का जो पैसेंजर है और जो लेफ्ट साइड का पैसेंजर है, क्या दोनों की स्पीड सेम होगी क्या? आपको क्या लगता है? चैट पे बताइए, यस और नो। ओके, तो अगर आपका जवाब हाँ है कि स्पीड सेम होगी, तो ये वाला डायग्राम देखिए। अगर एक गाड़ी सर्कल में गोल गोल घूम रही है तो जो अंदर की तरफ वाला जो बंदा है उसकी स्पीड क्यों कम रहती है, और जो बाहर की साइड पे गाड़ी में बैठा है उसकी स्पीड क्यों ज्यादा रहती है, या फर्क रहती है, सॉरी, उसको ज्यादा भागना पड़ेगा, डिस्टेंस, टाइम वगैरह। अब ये जो तरीका है लोगों के कॉन्सेप्ट को टेबल पे लाना और फिर उसे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाना, इसी तरह हमें टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स जो है बच्चे कैसे सीखते हैं उसको टेबल पे लाके उसके कॉन्सेप्ट में चेंज लाना पड़ेगा।
करेक्ट। सो मेरा कहने का अर्थ ये था कि कॉन्सेप्चुअल चेंज जो बच्चों पे लागू पड़ता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वही चीज टीचर पे भी लागू पड़ती है कि टीचर की अपनी जो फिलॉसफियां होती है, जो अपने बिलीव्स होते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल चेंज लाना जरूरी है। कौन से कॉन्सेप्ट में चेंज लाना वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो जो तरीका है वो करना जरूरी है। तो टीचर एजुकेशन के प्रिंसिपल में ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए हमने कहा कॉन्सेप्चुअल चेंज के लिए कंसिडर टीचर्स प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा तो टीचर का जो प्रायर नॉलेज है शायद वो वापस आ जाएगा और टीचर वापस से उसी तरह सिखाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना भी उसको सिखाया हो। या मैं वापस जाता हूं ऊपर। ये कैम्ब्रिज का डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें टीचर के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि एक अच्छे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में क्या स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाउ दे लर्न, नो सब्जेक्ट एंड करिकुलम कंटेंट एंड हाउ टू टीच इट, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल टीचर वैल्यूज वगैरह वगैरह। सो अगर आपको देखना है तो अगेन आपके पास ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दूसरा डॉक्यूमेंट है कैम्ब्रिज का टीचर का स्टैंडर्ड्स, जिसमें आप जाके देख पाओगे कि किस स्टैंडर्ड्स हमें रखने चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए। कॉन्सेप्चुअल चैलेंज पे हमने बात की। एक प्रॉब्लम अगेन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, थोड़ी सी एक छोटी एक्टिविटी है। विच प्रोसेस हैपेंस, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में ये चार में से कौन सा प्रोसेस आपको लगता है होता है? इज इट मेकिंग ऑफ फूड, ब्रीदिंग, रेस्टिंग, लूजिंग वाटर? और आप में से कोई ये भी कह सकता है कि मुझे नहीं पता, जैसे मैं कहता हूं मुझे भी याद नहीं है। और अगर आप में से कोई ये कहना चाहता है तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। ऑल, ओके, मेकिंग ऑफ फूड, ऑल, ठीक है। ये सवाल मैं नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको खुद ढूंढना होगा। सिमिलरली ऐसा ही सवाल जब टीचर्स को भी पूछा गया तो टीचर्स को भी इसका जवाब ठीक से नहीं पता था। उनको थोड़ा सा अलग करके पूछा गया, लेकिन टीचर्स को भी उसका जवाब नहीं पता था। तो उसका कारण ये है कि हम चीज़ों को मेमोरी से याद करते हैं, कॉन्सेप्चुअल चेंज या कॉन्सेप्ट समझते हुए याद नहीं करते, इस तरह से याद नहीं करते। हमको किसी ने फॉर्मूला बता दिया या कोई स्टेटमेंट मेमोराइज करने को बता दिया तो वही याद रह जाता है। और आई थिंक हमारा टीचर एजुकेशन का प्रिंसिपल होना चाहिए कि टीचर समझ के पढ़े, जैसे हम चाहते हैं बच्चे समझ के पढ़े। तो अगर हम चाहते हैं कि टीचर बच्चों को समझ के पढ़ाए और उनको समझने का मौका दे, 50% टाइम उन्हें दे, तो उतना ही समय हमें टीचर को भी समझने के लिए देना होगा। आज का ये जो मेरा वेबिनार है वो उसके कंप्लीटली विपरीत है, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा समझने का या आपसे बात करने का या आपको कुछ क्रिएट करने का मौका नहीं दिया, सिर्फ अपनी तरफ से बोले गया। तो थोड़ा सा मैं वो बोल रहा हूँ जो मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माफी चाहता हूँ उसके लिए कि हम इसको थोड़ा इंटरैक्टिव नहीं बना पाए। आखिर में एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि 2004 में 3489 कोर्सेस होते थे एजुकेशन में, जो 2009 में आते आते 14,000 हो गए। और पहले 3,200 इंस्टीट्यूट थे 2004 में, अब 11,850 इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं।
नंबर ऑफ पीपल जो अलग अलग एजुकेशन के कोर्सेज में जाते हैं, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बीएड एमएड वगैरह, वो पहले 2 लाख थे, अब वो 10 लाख करीबन 11 लाख हो गए। ये 2009 का आंकड़ा है। द नंबर ऑफ पीपल जो एजुकेशन में जा रहे हैं वो इतने हाई है, लेकिन जो क्वालिटी है टीचर एजुकेशन की वो इसके साथ मैच नहीं कर पा रही। हम बहुत तेजी से हमारे इंस्टीट्यूट हमने बना दिए, बहुत तेजी से हमने एनरोलमेंट बढ़ा दिया क्योंकि टीचरों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी क्वालिटी को हमने तेजी से इंप्रूव नहीं किया, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है टीचर एजुकेशन का। हमने डाइट अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाए, एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी सारे फंक्शनल नहीं है, और इसके बारे में भी आप वो डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। आखिर में अगेन यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं। अगर आप देखें तो ऊपर के प्रिंसिपल्स और नीचे के प्रिंसिपल्स में फर्क है। ऊपर है कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्टिव लर्निंग, और आप इसको सर्च कर सकते हो, ये मैंने अलग अलग जगहों से लिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्टिव लर्निंग, मेकिंग थिंकिंग विजिबल, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है। मेकिंग लर्निंग विजिबल, ये जॉन हेटी जो ऊपर मैंने जिसके बारे में बात की उसका है। असेसमेंट फॉर एंड एज लर्निंग, एजुकेशन फॉर सोशल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेसी एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्सेस अगर नीचे आप देखें तो हमें सारे टीचर्स को अच्छे से अच्छे लेसन प्लान बना के दे देने चाहिए, करिकुलम बना के दे दो, सिलेबस दे दो, टीचर का अपने हिसाब से जो प्रायर नॉलेज है उसके ऊपर देखो। एक फेमस सेइंग होती है हमेशा, मैंने तो सिखा दिया, बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा वो मुझे नहीं पता। तो उस तरीके से अगर हम सोचें, या ज्यादा करके हम असेसमेंट करते हैं तो कितना सीखा कि नहीं सीखा वही होता है, और अक्सर इस चीज में हम रह जाते हैं। टीचर की खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग इंप्रूव नहीं हो पाती। मेरे पास 2 मिनट है और हम क्विकली क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा चले जाएंगे। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो कोशिश की है आज के उसमें, और इसके बाद मैं आपको एक रीडिंग लिस्ट की एक्सेल फाइल दूंगा, और मैं ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश ये थी कि मैं आपको थोड़े से प्रिंसिपल्स बता पाऊँ, और वो प्रिंसिपल्स के थोड़े से डॉक्यूमेंट बता पाऊँ जहाँ से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन और मिलेगी। उसके अलावा उसको कितना डीप में कवर करना ये मुश्किल है अभी के लिए, लेकिन अगर आप टीचर एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं तो ये जो एरियाज है ये सिर्फ आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। इन सारे एरियाज के अंदर आपको डीप में आर्टिकल्स रीड करके, अपनी रियल लाइफ में इन चीजों को होते हुए ना होते हुए देख के अपनी एक समझ बनानी पड़ेगी, ताकि फिर आप टीचर एजुकेशन में वो चीजों को में बदलाव ला पाओ। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। आखिर में ये एक छोटा सा कार्टून है जो ये कहता है क्या चल रहा है वो समझने के लिए आपको कितना बड़ा होना पड़ेगा। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने शुरुआत में शेयर किया था उसका टाइम नहीं बताया था, वो इसके लिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट 1990 का डॉक्यूमेंट है। 1993 में गवर्नमेंट ने लर्निंग विदाउट बर्डन करके डॉक्यूमेंट बनाया था, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तभी से लेके और शायद उसके पहले से हम ये कह रहे हैं कि टीचर्स के प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन अभी भी वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाए। और उसके प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं हो पाए, अक्सर लोग सिस्टम पे जोर देते हैं, लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल्स को फोकस करें और इन प्रिंसिपल्स में से कोई एक या 2 प्रिंसिपल पे भी हम अगर काम करें ना, और टीचर्स को 2 प्रिंसिपल पे भी काम करा दे, तो शायद बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। ये एक सबमिशन है, ये हमें सोचना था। आई वांटेड टू नाउ ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं।
कंटिन्यूस एजुकेशन करके मुझे नहीं लगता है, मास्टर्स इन एजुकेशन करके होता है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स शायद नहीं होते हैं। तो कैम्ब्रिज का जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया वो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, और वो एक उसमें डिप्लोमा करने के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इंडिया में आई थिंक IGCSE करके जो कैम्ब्रिज की जो स्कूल्स होती है वहाँ प्रोवाइड करने में आता है। और ऑफ कोर्स मैं जो डॉक्यूमेंट बात कर रहा था वो यूके का था, लेकिन इंडिया में जो सर्टिफिकेट कोर्सेज IGCSE प्रोवाइड करता है वो एक है। उसके अलावा आई एम श्योर कंटिन्यूस टीचर डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज में कुछ होगा, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमें नहीं पता। आगे के कुछ सेशन है जिसमें हम टीचर अपने आप को कैसे सेल्फ असेस कर पाए कि उन्हें कितना आता है नहीं आता है, वो कवर करने वाले हैं। तो आगे का जो एक सेशन होगा जो कोई और लेने वाला है, उसमें शायद थोड़ा सा आपको वो जवाब मिले कि इन एब्सेंस ऑफ सिस्टम क्या टीचर खुद अपने पढ़ाई, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाएगा क्या, वैसा। अगेन सिलेबस जो है उसमें जब चेंजेस आते हैं तो टीचर को क्या सपोर्ट मिलते हैं, इसका जवाब मैं ऐसा सोचना चाहता हूं, और ये मैं लर्निंग विदाउट बर्डन के डॉक्यूमेंट के हवाले से ये देना चाहता हूं कि वहां पे ये कहा गया है कि टीचर्स को खुद करिकुलम प्लानर्स बनना पड़ेगा। तो अगर कोई नया सिलेबस टीचर के पास आता है और अगर टीचर को हमने ट्रेनिंग दी है कि वो खुद करिकुलम समझे, तो वो खुद ही वो सिलेबस में क्या बदलाव आए हैं, क्यों आए हैं, वो करिकुलम से उसका क्या लेना देना है, वो खुद पता करने के लायक काबिल बन जाते हैं। और जब वो इसके काबिल बन जाते हैं ना, तो टीचर्स को बताना नहीं पड़ता है कि सिलेबस में क्या चेंज आया, वो खुद उसे पढ़ के वो खुद अपनी करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग को आगे रखते हुए खुद समझ सकते हैं। तो टीचर एजुकेशन के अंदर करिकुलम को कैसे पढ़ा जाए और करिकुलम को पढ़ते वक्त टेक्स्ट बुक का उसे एक हिस्सा माना जाए, ना कि टेक्स्ट बुक को करिकुलम माना जाए, ये समझाना बहुत जरूरी है। राइट, कॉलेज टीचर्स के बारे में मेरी थोड़ी समझ थोड़ी कम है, तो माफी चाहता हूं, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा कॉलेज टीचर्स के रिलेटेड। मैं यूजुअली स्कूल्स में काम करता हूं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग स्कूल टीचर्स के तरफ से ज्यादा आई है। शुक्रिया, थैंक यू लिज। क्या वो इस तरह से होता है, नहीं होता है मनावा, और इसीलिए हम ये जो आप जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हो उसमें हम ये कह रहे हैं कि क्या टीचर्स का टीचर एजुकेशन में आप में से कोई बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है, और क्या वो प्रैक्टिकली जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स का जो जवाब है वो भी डॉक्यूमेंट में है, क्या वो कोई कोशिश करके उसे रियल में लाने की कोशिश कर सकता है क्या। तो ये चैलेंज आपके लिए है, वो होता नहीं है, और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, या इट कैन बी डन। करिकुलम रिस्ट्रक्चरिंग तो एक बंदे से नहीं हो सकता, लेकिन करिकुलम जो है वो यूजुअली कोई टीम करती है, और जब नेशनल करिकुलम बना था तो बहुत बड़ी टीम थी, और वो बहुत बड़ी टीम ने बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए थे। मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन टीचर एजुकेशन के संदर्भ में अगर आप समझे, और करिकुलम इन इटसेल्फ एक अलग टॉपिक है, लेकिन टीचर एजुकेशन के संदर्भ में अगर आप समझे तो टीचर का जो रोल है वो करिकुलम को टेक्स्ट बुक ना होते हुए देखना, ये पहला कदम है। कम से कम टीचर को इतना पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक इज नॉट माय करिकुलम, और मुझे टेक्स्ट बुक के अलावा चीजों को सिखाना है। अगर ये पहला स्टेप भी हम टीचर्स तक ले जाए
और उन्हें कुछ मदद कर पाए, तो हमें लगता है कि हम हमारे सोसाइटी के टीचर के अंदर थोड़ा सा हम उन्हें मदद कर पाएंगे। एक स्टेटमेंट में ये आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं इसमें, वो ये वाला है। जब मैंने कहा था कि टीचर एनसीएफ का एक एजेंट बने और सेफगार्ड करे, और ये सवाल आप सबके लिए है। मान लीजिए मेरे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आपको तो भैया सिर्फ टेक्स्ट बुक देखना है और सिलेबस देखना है और एग्जाम को ध्यान में रख के ही सिखाना है। क्या हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल और हमारे आसपास के टीचर को ये जवाब देंगे कि नहीं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो ये नहीं कहता। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें कहता है कि हमें टेक्स्ट बुक के बाहर जाना है। कैन वी हैव मोर टीचर्स हु कैन से लाइक दिस टू टीचर्स अराउंड देम एंड टू प्रिंसिपल्स अराउंड देम? अगर हम उस तरह के टीचर्स बना पाए टीचर एजुकेशन में, जो बार बार अपनी स्कूल में आवाज उठाए और ये कहे कि हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो गाइडलाइंस है उसको भी हमें देखने हैं, और वो तो खुद कह रहा है कि हमें टेक्स्ट बुक फाइनल नहीं है, तो शायद एक आवाज उठेगी पूरे समाज में, जहाँ पे स्टेट बोर्ड के अगर कोई ऑफिसर्स भी आके कहते हैं आपने ये नहीं कराया, तो उनको कहना है कि हम तो नेशनल करिकुलम को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो उस तरह का जो बातें हैं, वो बातों को हमें थोड़ा सा सिस्टम में लाना है, ताकि हर टीचर ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है उसका एक वो एजेंट बने, उसका एक एम्बेसडर बने, उसका वो सेफगार्ड करे। वरना तो फिर हमारे टीचर्स हर साल सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही अटक जाएंगे। करेक्ट, बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग होती है और वहीं पे दिक्कत है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हमें थोड़ा सा देखना होगा कि कौन सी टीचर ट्रेनिंग कितने हद तक क्या कर पाती है। ये मेरा अक्सर सवाल ये होता है जब मैं सोचता हूँ कि टीचर ट्रेनिंग कैसे बेहतर की जाए, तो मैं पहले सोचता हूँ कि करंटली कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो टीचर एजुकेशन के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहती है, और उन्होंने कौन से एरियाज पे काम करना शुरू किया है। क्योंकि सारे एरियाज नहीं कर पाएंगे कोई, जो सिस्टम के प्रॉब्लम है वो कोई एक संस्था या एक बंदा सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो लेकिन कौन से एरियाज पे कौन सी वाली संस्था ज्यादा फोकस करके काम करने की कोशिश कर रही है, ये समझना आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट कदम रहेगा। और उसके बाद आप खुद तय कर सकते हो कि उन संस्थाओं के साथ मिलके आपको काम करना है, आपको एक दूसरी संस्था बना के कुछ और करना है, वो आप देख सकते हो। अगेन एनसीएफ लेवल पे डिस्कशन हुआ है, डिबेट भी हुआ है, और एनसीएफ ने एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट भी बनाया है। सवाल ये है कि वो डॉक्यूमेंट को कितने लोग अपने स्कूल तक लेके जाते हैं, और हम में से जो लोग स्कूलों में मदद करना चाहते हैं, टीचर एजुकेशन की संस्थाओं में मदद करना चाहते हैं, क्या हम ये कॉन्वर्जेशन उन संस्थाओं में लेके जाके फिर से एक नया उसे जीवन दे और फिर से उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाए? ये क्या हम ये काम कर सकते हैं? आज का ये सेशन का गोल ये नहीं था कि भैया हमें पता नहीं है कि क्या करना है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट में काफी कुछ लिखा हुआ है जहाँ पे हमें पता है हमें क्या करना है, वो कैसे करना है संस्थाओं के द्वारा उन्हें उस डॉक्यूमेंट को फिर से जीवित करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में 2 कदम आगे बढ़ाना, ये करने का काम हमारा थोड़ा सा होगा। और ये हमें थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म इज समथिंग, बराबर आपने सही कहा, जितना हो सके उतना हमें इसके बारे में चर्चा करनी होगी हमारे स्कूलों में, हमारे संस्थाओं में, और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकेंगे हम। हाँ, कई स्कूल जो होते हैं वो उन्हें को प्लानिंग में रखते हैं, को टीचर रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारियां देते हैं। वो भी एक अच्छा प्रिंसिपल है टीचर्स को। लेकिन जो लो बजट स्कूल्स है इंडिया में, अगर आप लो बजट प्राइवेट स्कूल्स का थोड़ा रिसर्च करें तो आप ये पाएंगे कि लो बजट प्राइवेट स्कूल्स इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में ग्रो हो रहे हैं, और वहां पे उनके पास वो स्कोप नहीं होता है कि टीचर्स को वो ट्रेन कर पाए, और उन्हें आउटसाइड मदद की बहुत जरूरत होती है।
तो आई थिंक वो रिसर्च और ये रिसर्च को अगर हम मिला पाए और फिर हम लो बजट स्कूलों के लिए कैसे टीचर एजुकेशन इम्प्रूव कर पाए, ये अगर एक जहन में रखें और आप में से किसी को अगर उस पर काम करना हो तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप असिस्टेंट टीचर वाला मॉडल यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो एक अच्छा मॉडल है। अच्छी अच्छी आईबी स्कूल्स भी अपने टीचर्स को पहले ऑब्जर्व करने लगाते हैं, जो अच्छे टीचर्स कैसे सिखाते हैं उसको, फिर उनके साथ वो चर्चा करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा दिखा, और वो जब वो कह पाते हैं कि मुझे ये अच्छा दिखा, ये अच्छा समझा, और जब मैं समझता हूँ कि हाँ टीचर को समझ में आया देखने के बाद, तब वो टीचर को थोड़ी सी जिम्मेदारियां दी जाती है, तो वो कर सकते हैं। लो बजट प्राइवेट स्कूल का मतलब जो कम फीस में बच्चों को सिखाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री होती है, लेकिन लो बजट प्राइवेट स्कूल जो 200 रुपए की फीस से लेके करीबन 1500 रुपए की फीस जो बच्चे स्कूल लेते हैं, उन्हें लो बजट प्राइवेट स्कूल्स कहा जाता है। अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल करके भी कहा जाता है। और अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल पे अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स या लो बजट प्राइवेट स्कूल्स, तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि बहुत ही बड़ी मात्रा में ऐसी स्कूल्स क्रिएट होती है जहाँ का प्रॉफिट का जो मॉडल होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन उन सब चीजों में टीचर ट्रेनिंग, वो सब चीजें बैकफुट पे चली जाती है। बायोलॉजी टीचिंग के लिए आपको अगेन कॉन्सेप्चुअल चेंज एंड टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग करके जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर पाए, कॉन्सेप्चुअल चेंज और टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। और मैं आपके साथ थोड़े से जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ उसमें मैंने लिखा हुआ है रीडिंग लिस्ट में। तो बायोलॉजी टीचर्स के लिए आपको वहाँ से काफ़ी रिसोर्सेस वगैरह मिल पाएंगे टीचर एजुकेशन के लिए। Yes, correct. Yeah, yeah. If you don't have a subject in mind and you want to largely improve teacher education, then yeah, you could look into understanding also. Okay. Yeah, that will be great if you can develop a suggestive curriculum framework, and if you could make it available for a lot of people, then yeah, that will be helpful. Do take a look at what others are doing to be able to see what challenges they are facing and all of those things. Yeah. वो आरटी का तो अपना ही एक अलग डिस्कशन है, प्राइवेट स्कूल चाहिए नहीं चाहिए, पब्लिक सेक्टर स्कूल, तो वो डिस्कशन में बहुत ही अलग है। आई थिंक उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। मैं खुद प्राइवेट स्कूल से निकला हूँ, तो अब मैं कैसे कह दूं कि प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दीजिए, ये तो मेरे तरफ से एक वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है, उनका सोचना है कि वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे, क्योंकि वो समझते हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि वो उसमें इम्प्रूव करे। तो अगर आपको देखना है कि पब्लिक एजुकेशन के लिए कोई कौन काम कर रहा है और वो उनका क्या अप्रोच है, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को आप चेक कर सकते हो। आरटीई में भी मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है, नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें वो आरटीई के बारे में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत कम स्कूल्स इंप्लीमेंट करते हैं, दैट्स करेक्ट। आरटीई तो काफी कम स्कूलों में होता है।
Okay, I think that's it from my side. I hope आपको ये थोड़ा सा helpful हुआ. Again, the focus was कि मैं आपको direction बता पाऊँ कि कहाँ पे आपको कुछ मिलेगा. Again, वो जो direction है वो सिर्फ एक डायरेक्शन है, उसके अलावा भी टीचर एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ होगा, तो सारी चीज हम कवर नहीं कर पाएंगे और मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो वो पता भी नहीं है. लेकिन वहां से अगर आप शुरू करेंगे, जो दो बड़े एरियाज है, वन इज नेशनल करिकुलम एंड सम बिग कॉन्सेप्ट्स, तो आप खुद अपने उस रिसर्च में आगे बढ़ पाएंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई थिंक यहाँ पे कोई फीडबैक फॉर्म दिया गया है, अगर आप सब ये फीडबैक फॉर्म भर पाए तो बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा. Also, Sure. we have tied up with ThinkShare Foundation. We are helping them in their initiative to make the education more accessible and more better, the drive that we are into. You can, I'll just post the link of ThinkShare Foundation's donation link, which is there. If you feel that things are going good and if you feel the zeal to contribute in this, you can freely contribute to that foundation. The money will be directly, obviously, going to their account. We have no connection with that. It is just that we are trying to help this in a better way. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone.